لاہور میں مونسون ہواؤں کی آج سے انٹری، بارش کا بھی امکان۔ شہر میں ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت کم ہو گئی، درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی، دن میں پارہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوائیں چلنے مطلع جزوی آبار آلود ہونے پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ محکمہ موسمیات نے 1 جولائی تک بادل برسنے کی نوید سنا دی۔ محسن نقوی سپیڈ ملا، عوام کو بڑا ریلیف، اوور بلنگ پر بجلی صارفین کو مزید اربوں کی رعایت ملے گی۔ ایف آئی اے نے رواں ماہ میں پرانی اوور بلنگ پر کریڈٹ دینے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ مزید 30 کروڑ یونٹس پر صارفین کے بلوں میں ریفنڈ دیا جائے گا۔ کل کریڈٹ یونٹ 99 کروڑ ہو گئے۔ لیسکو 69 کروڑ یونٹس پر صارفین کو پہلے بھی ریلیف دے چکا۔ 1 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل 8 روپے فی لیٹر تک مہنگا کرنے کی تجویز۔ فائنانس بل پنجاب فائنانس ایکٹ 2024 بند کیا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے فائنانس بل پر دستخط کر دیے۔ فائنانس بل 1 جولائی سے لاگو ہوگا۔ فائنانس بل اسپیکر کی جانب سے منظوری کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بل کی پنجاب اسمبلی نے منظوری دی تھی۔ وزیر اعلیٰ کا صوبے میں ترقیاتی عمل تیز کرنے کا حکم۔ تمام پی سی 1 15 جولائی تک جمع کرانے کی ہدایت۔ 840 ارب کے ترقیاتی بجٹ پر عمل درآمد کے لیے بڑی تیاری کا آغاز۔ وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کو 31 اگست تک تمام منصوبہ بندی مکمل کرنے کی ہدایت۔ لاہور کے بناؤ سنگھار کے لیے 3 منصوبے لانے کا فیصلہ۔ پی ایچ اے 4 کروڑ 30 لاکھ سے حسین چوک پر خوبصورت مانیومنٹ بنائے گا۔ ایڈمن بلاک کا باہر والا راستہ بند کر کے ڈین پارلین کی بیوٹیفیکیشن کی جائے گی۔ نیا راستہ جلانی پارک کے اندر سے دیا جائے گا۔ مرکزی گیٹ کی اثر نو تعمیر بھی کی جائے گی۔ اپنی چھت اپنا منصوبہ، بیوروکریسی کی الگ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنانے کی سفارشات۔ محکموں کی موجودگی کے باوجود 70 کروڑ صرف پی ایم یو پر خرچ کیے جائیں گے۔ بھاری تنخواہوں پر من پسند کنسلٹنٹ ہائر کیے جائیں گے۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نے سمری ارسال کر دی۔ آئی ایم ایف نے پنجاب حکومت پر شکنجہ کس دیا۔ اگلے مالی سال میں 630 ارب کی بچت کرنے کا حکم۔ شرائط کو پورا اور تمام اخراجات کو کنٹرول کرنے کا ٹارگٹ چیف سیکرٹری کو ویڈیو لنک اجلاس کے دوران دیا گیا۔ ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال 13ویں روز بھی جاری۔ سرکاری اسپتالوں کے آؤٹ ڈورز میں علاج معالجات تعطل سے دوچار۔ جناح جنرل میو گنگارام کی او پی ڈیز بند۔ چلڈرن پی آئی سی سروسز ہسپتال میں بھی او پی ڈیز میں علاج نہیں ہو رہا۔ سرکاری ہسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال۔ قائم مقام چیف جسٹس شجاعت علی خان نے کہا ڈاکٹرز کو اسپتالوں میں ہونا چاہیے، عدالتوں میں نہیں۔ صدر وائی ڈی اے نے کہا کہ عہدیداروں کے ساتھ مشاورت کر کے کوشش کروں گا جمعے تک ڈاکٹرز ہڑتال ختم کر دیں۔ وائی ڈی اے کی ساہیوال واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کی استدعا۔ ینگ ڈاکٹرز کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی۔ ہیپاٹائٹس سی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 1 ماہ میں سرکاری اسپتالوں میں 475 کیسز کی تصدیق۔ سب سے زیادہ جنرل اسپتال میں 157 کیسز سامنے آئے۔ میو 77، جناح 52، سروسز ہسپتال میں 43 کیسز رپورٹ۔ ڈینگی کیسز میں بھی اضافہ، مزید 6 افراد بیمار۔ پنجاب بھر کے ہزاروں اساتذہ کے لیے بری خبر۔ 20,000 اساتذہ کی ریشنلائزیشن کے لیے ورکنگ پیپرز تیار۔ سکولز میں بڑے پیمانے پر ٹیچرز کو دوسرے سکولز میں جبراً ٹرانسفر کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں سب سے سینئر ٹیچرز کے تبادلے کیے جائیں گے۔ میٹرک میں ٹیکنیکل ایجوکیشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ طلباء و طالبات میٹرک اور انٹر ٹیک میں داخلہ لے سکیں گے۔ موٹر، اے سی میکینک، الیکٹرانکس، ریفریجریٹر اور میکینیکل کے مضامین کا انتخاب کیا جا سکے گا۔ امتحان پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن لے گا۔ ہنرمند قیدی اب جیلوں میں لاکھوں روپے کمائیں گے۔ فرنیچر بنانے والے قیدیوں کو روزانہ 50 روپے کی بجائے 1,000 روپے ملیں گے۔
जेल हुक्काम के मुताबिक जिन कैदियों के पास हुनर नहीं होगा उन्हें 500 रुपये दिहाड़ी दी जाएगी। गैर हुनरमंद कैदियों को 2 माह के अंदर काम सिखाया जाएगा। मार्केट में महंगाई का राज, दालें 3000 मन तक महंगी। दाल, चना, बेसन, काले चने, दीगर दालों की कीमतें आसमान तक जा पहुंची। दाल चना की सरकारी कीमत 250, होलसेल में 285 रुपए किलो फरोख्त। उधर आटे के थैले की कीमत 50 से 100 रुपए तक बढ़ गई। नवाब पार्क अटारी सरोबा का इलाका सीवरेज मसाइल की आमाजगा बन गया। घरों के बाहर जमा पानी मच्छरों की अफजाइश का बन गया। शहरियों का वासा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। जल्लो पार्क में महकमे जंगलात सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने में नाकाम। जगह जगह लगे गंदगी के ढेर। ज़राअत शहीद रोड, धर्मपुरा का राजा पब्लिक पार्क इंतजामी गफलत का शिकार। पार्क में लगी सहूलियात नाकारा, हिफाजती दीवारें तक गिर गईं। शहरियों का अरबाब इख्तियार से मसाइल हल करने का मुतालबा। शिद्दत पसंद ज़हनियत रखने वाले पुलिस एहलकारों की छान फटक होगी। स्पेशल ब्रांच में भर्ती होने वाले टेक्निकल स्टाफ की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का फैसला। मुलाजिमीन की ज़हनी हालत परखने के लिए माहिर नफ्सियात से प्रोफाइलिंग करवाई जाएगी। सब्जाजार में जुडिशल विंग की हिरासत से नैब का मुलजम फरार। एहलकार उमर यूनुस, इरफान और जुबैर उस्मान को पेशी के बाद खाना खिलाने ले गए। मुलजम अहलखाना समेत मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अरकान असम्बली के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारियों पर समातें। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ की कामयाबी के खिलाफ समात। जस्टिस अनवार हुसैन ने नुमाइंदा या वकील पेश करने के लिए कल तक मौका दे दिया। लीगी MPA मलिक खालिद परवेज और मियां मरगूब के खिलाफ भी समात। इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 45 और 47 का मुसद्दिका रिकॉर्ड तलब। PP 32 गुजरात से चौधरी साले की कामयाबी और कैसरा इलाही की नाकामी का मामला। जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कैसरा इलाही की इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कैसरा इलाही की इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत, फरीकैन को नोटिस जारी। मॉडल टाउन पुलिस शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी में नाकाम। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान, SP ऑपरेशंस मॉडल टाउन इखलाक तारड़ पेश। अदालत का पुलिस की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। एडवोकेट जनरल पंजाब और IG कल जाती हैसियत में तलब। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने वजीर आला पंजाब को भी तलब करने का इंदिया दे दिया। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। मोटरवेज के हर इंटरचेंज पर एम्बुलेंस सर्विस शुरू होगी। तरक्याती मंसूबों के लिए 400 मिलियन फौरी रिलीज करने का हुक्म। वजीर आला की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाने की हदायत। गंदम के बाद पानी का मसला, किसानों की मुश्किलात कम न हो सकी। पंजाब असम्बली में हुकूमती अपोजिशन रुकन एक पेज पर आ गए। हुकूमती रुकन एहसन रसा बोले, हमारे इलाकों में पीने का पानी है और ना ही किसानों को दिया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजहार हमदर्दी करते हुए कहा, पानी का ना होना तकलीफ का बायस है। अगर पानी ना मिला तो धान की फसल को नुकसान पहुंचेगा। शहर के तारीखी और कदीमी विरसा की बहाली। नवाज शरीफ से वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के DG कामरान लाशारी की मुलाकात। सरदार नून लीग ने अंदरूने लाहौर की तारीखी हैसियत की बहाली पर वर्ल्ड सिटी की खिदमात को सराहा। तारीखी इमारतों की बहाली का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। YDA की हड़ताल का कोई जवाब नहीं है। हड़तालों से निजात मिली तो 1 साल में हेल्थ सिस्टम मुकम्मल बदल देंगे। सूबाई वज़राए सेहत सलमान रफीक और इमरान नसीर की ज़ेरे सदारत इजलास। अस्पतालों में मरीजों के इलाज और मुआवजे का जायजा लिया। वज़ीर सेहत सलमान रफीक से इंश्योरेंस कंपनियों के नुमाइंदगान की भी मुलाकात। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शाफी हुसैन से पाक चाइना ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वक्त की मुलाकात। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। शाफी हुसैन ने कहा कि सरमायाकारी में किसी रुकावट को हायल नहीं होने देंगे।
गवर्नर पंजाब से तुर्किया के काउंसिल जनरल की मुलाकात, तिजारत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने कहा तुर्किया के साथ पाकिस्तान का दरीना गहरा बरादराना रिश्ता है। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की सोशल वेलफेयर के दफ्तर आमद। सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीकी हुकूमत के दरमियान समाजी बहबूद पर तबादला ख्याल। कौंसल जनरल सेहत, तालीम और रोजगार में हुकूमती मुआवनत के लिए खुसूसी इक़दाम पर आमादा। नाइजीरिया के वफ्द का पीटीएम में पंजाब का दौरा, 3 रियासतों के गवर्नर समेत आला हुकूमती अहदेदार शामिल। वफ्द ने कुदरती आफात से निपटने के निजाम बारे आगाही हासिल की। वफ्द ने पीटीएम में कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। डीजी इरफान अली काठिया ने ब्रीफिंग दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हाईकोर्ट बार आमद। डॉक्टर जावेद इकबाल ऑडिटोरियम हॉल में तकरीब। सदर हाईकोर्ट बार असद मंजूर बट, हाफिज अब्दुल रहमान अंसारी, जुल्फकार अली की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी ने बार में फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह भी किया। कमिश्नर लाहौर की जेर सदारत ट्रैफिक रवानी बारे इजलास, डीटीएलडी ताहिर फारूक, डीसी राफिया हैदर की शिरकत। कमिश्नर ने कहा गैर कानूनी पार्किंग और ट्रैफिक जाम की निशानदेही पर एक्शन लिया जाए। टीपा शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स पर लेन मार्किंग को चेक करें। पंजाब पुलिस के 13 बहादुर जवान गाजी करार। आईजी पंजाब ने जांबाज अफसरान और एहलकारों को गाजी मेडल से नवाजा। तमाम गाजी जवान के नाम सेंट्रल पुलिस ऑफिस की गाजी वॉल पर दर्ज किए जाएंगे। गाजी पैकेज के तहत इज्जत अफजाई और सहूलियात के हकदार होंगे। महकमा पुलिस में तरक्कियों का सिलसिला जारी। मोटर ट्रांसपोर्ट विंग के 5 हेड कांस्टेबल एएसआई बन गए। तरक्की पाने वालों में मिर्जा खान, इफ्तिखार हुसैन, आलमगीर, अब्बास रजा और खालिद महमूद शामिल। एसएसपी नीता उमर चुट्टा और डीएसपी खालिद सईद ने प्रमोशन बैजेस लगाए। सब इंस्पेक्टर मंजूर अहमद और नासिर अली को रिटायरमेंट पर एहसासी शील्ड्स भी पेश की। डीजीएलडीए ताहिर फारूक की जेर सदारत इजलास से शिफ्टिंग सेल की कारकर्दगी का जायजा लिया। एडिशनल डीडी हाउसिंग अवैस मुश्ताक और चीफ आईटी ऑफिसर अब्दुल बासित की ब्रीफिंग। इजलास में शिफ्टिंग सेल में काम करने वाली टीमों की वर्किंग का भी जायजा लिया गया। कारोबारी बरादरी का ऑपरेशन असम इस्तेहकाम की हिमायत का ऐलान। ऑपरेशन असम इस्तेहकाम दहशतगर्दी की अफरियत के खात्मे के लिए जरूरी है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, चेयरमैन पयाफ फहीमुर रहमान सहगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर चैम्बर की सियासत में जोड़ तोड़ जारी। कोई ताजिर रहनुमा किसी ग्रुप से जुड़ रहा है तो कहीं खैराबाद कह रहा है। प्याप फाउंडर अलायंस के अरशद खान ने पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अरशद खान की पायनियर्स बिजनेसमैन कायदीन से मुलाकात। मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ अच्छा काम कर रही हैं, बहुत मेहनती हैं। अदाकारा मीरा की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, लोग पूरी दुनिया से फोन करके पूछते हैं कि मीरा कहाँ गायब हो गई। पंजाब से अपने फिल्म प्रोजेक्ट्स का आगाज कर रही हूँ। द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का 14वां कॉन्वोकेशन। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक, इमरान नज़ीर की खुसूसी शिरकत। अवैस रऊफ, उज़ैर रऊफ, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, अली असलम शरीक। 13,404 तुलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम। 314 तुलबा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया का 3 रोजा थीसिस डिग्री शो, फैशन, टेक्सटाइल समेत दीगर थीम पर थीसिस नुमाइश के लिए लगाए गए। और गुलशन रावी में देसी कुश्ती एसोसिएशन के तहत दंगल। महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने एहतमाम किया। दंगल में 30 छोटी बड़ी कुश्तियां हुई। सखी पहलवान, हुसैन पहलवान, दादी पहलवान, हम्माद भट्ट पहलवान ने अपनी कुश्तियां जीत ली। मोती पहलवान और पठान पहलवान की कुश्ती बराबर। काला पहलवान ने हर कुश्ती के फातेह पहलवान को नकद इनामात से नवाजा।